دنیا میں رہنے والے مختلف لوگ ہیں. کوئی تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے، جس طرح کہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یعنی ان میں سے 1000 برس زندہ رہنے کو دوست رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم دنیا میں زندہ رہیں، ہمیں موت نہ آئے. اور کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو موت کو ایک تحفہ سمجھتے ہیں، جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن موت کو تحفہ سمجھتا ہے، مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، مومن موت کو گلے لگا لیتا ہے. ہمیشہ منافق موت سے ڈرتا ہے یا کافر موت سے ڈرتا ہے، مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا. بس وہ ایک ہی سوچتا ہے رزق اور موت میرے رب کے دست قدرت میں ہے، وہ رزق دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ موت دے تو کوئی ٹال نہیں سکتا. بس اس کا ایک سوچ اور ایک ہی ذہن ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن موت کو تحفہ سمجھتا ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ کل کے لیے رزق جمع نہ کرو، کیونکہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے، اگر زندگی ختم ہو گئی تو پھر رزق بھی ختم ہو. کوئی کسی کا رزق روک نہیں سکتا. آج کل کی اس دور کے اندر بھی بڑے جناب علی 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا رزق فلاں بابے نے بند کر دیا، آپ کے اوپر فلاں نے تویز کر ڈالے، آپ کا فلاں نے رزق بند کر دیا. آپ یا پھر کچھ لوگ لالچی قسم کے ہوتے، کسی کی پالش کر کے کچھ کھانا یا کچھ لالچ کر کے کھانا. رزق ہر انسان کا اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، اور وہ رزق جو اس رب نے مقرر فرمایا ہے یہ رزق کوئی کسی کا بند نہیں کر سکتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق اور موت کوئی کسی کا بند نہیں کر سکتا. اگر تم لوہے کے بند پنجروں میں بیٹھے ہو نا، موت وہاں بھی آ کر رہے گی اور رزق وہاں بھی آ کر ملے گا. رزق تو مومن کو تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، رزق بھی ایسے ہی تلاش کرتا ہے. سیدنا حضرت اسود حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کے اندر کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خیر ہے، نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں موت کے فرشتے کو دیکھتا ہوں، وہ کدھر سے آئے گا، اس کی تلاش میں ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. مگر ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور موت کی سختی اور موت کی شدت یاد ہی نہیں آتی، حالانکہ موت کی بہت بڑی سختی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وجات سکرۃ الموت بالحق، آئی موت سختی، موت کی سختی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگتا تھا وہ موت تمہیں آ کر ہی رہے گی جہاں بھی بھاگ. اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، یعنی روح قبض کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، اور بدلہ ہے یہ اس کا کہ تم اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، نبی کی نبوت کو جھٹلاتے تھے، وحی کو جھٹلاتے تھے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تم، اور اس کی آیتوں سے تم تکبر کرتے تھے. اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق واتفت الساق بالساق. ہاں جب جان نکلنے تک پہنچ جائے گی اور موت کا وقت ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے، جو اس کے قریب بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے یار فلاں چیز پھونک جھاڑ کریں، اللہ اس کو شفا دے دے. اور اس وقت وہ مردہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا اس وقت جدائی کا وقت، میں اہل و عیال سے جدا ہونے لگا ہوں،
इस दुनिया की मालो मता से जुदा होने लगा हूँ। ये जुदाई की आखिरी घड़ी है, माल दुनिया से बिल्कुल जुदा होने लगा हूँ और पिंडली लिपट जाएगी उसकी, यानी मौत की सख्ती से बेअहम पांव लिपट जाएंगे और उस दिन तेरे रब की तरफ हाँकना है तूने। सोचने की बात यह है कि अगर आज हमारा कोई दुश्मन हमें कह देना या कोई तीसरा हमें कह दे कि यार आज फलां तेरा दुश्मन ने तेरे पास तुझ पर हमला करना, और फिर ये रहता भी ऐसी जगह पे है कि जहाँ इसके भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, एक ही बंद कमरे में है और खबर सुनाने वाले ने सुना दी कि आज दुश्मन तुझ पर हमला करेगा। सिर्फ इतना सोचिए, क्या उसको खाने में लज्जत आएगी, पीने में लज्जत आएगी? उसकी तो नींदें उड़ जाएंगी। खाना पीना तो और जगह पे रहा, नींदें भी उसकी उड़ जाएंगी क्योंकि भागने की जगह भी नहीं है और दुश्मन ने भी उस पर वार करना है, किसी ने खबर दे दी। और ये हो भी सकता है कि वो दुश्मन हमला ना करे, हो सकता है दुश्मन उस पर हमला ना करे, ये मुमकिन है। लेकिन जो मौत है ना, मौत ये बरहक है, इसने आना ही आना है। सोचने की सिर्फ इतनी बात है कि अगर दुश्मन का डर हो तो खाना पीना भूल जाता है, नींदें नहीं आती, नींद भूल जाती है, और मौत की सख्ती ये तो याद तक भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक महबूब ने मौत की सख्ती को बयान फरमाया शरह सदूर के अंदर सफ़ा नंबर 13। हुजूर ने फरमाया कि हुवा क़द्रु सलासिन मियत दरबतिन बिस्सैफ, फरमाया कि मौत की इतनी तकलीफ होती है जितनी 300 बार तलवार चलाई जाए। इतनी सख्ती होती है मौत की कि 300 बार तलवार का चलाना। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ते मैयत को बंद कर देते हैं। जब उसकी रूह कब्ज करते हैं ना, तो फरिश्ते मैयत को बंद कर देते हैं एक किले के अंदर, कि मैयत वहां से हिलचुल नहीं सकती। उसको बंद करके फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैयत को फरिश्ते बंद न करते तो ये मैयत मौत की सख्ती की वजह से भागता जंगलों के, इसलिए फरिश्ते इसको पहले बांध देते हैं, बंद कर लेते हैं। शरह सुदूर के अंदर फरमाया सफ़ा नंबर 13 पे हदीस मुबारक, हुजूर ने फरमाया कि इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसकी रूह निकालते हैं, और फिर जब रूह निकलती है इंसान के जिस्म से, वो जो तकलीफ होती है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तकलीफ ऐसी है कि जैसे 300 बार किसी ने तलवार चलाई उस पर और मरा भी। और सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने हज़रत काब बिन अहबार से सवाल फरमाया कि यार जान कुनी की तकलीफ़ कितनी होती है? जब रूह कब्ज़ होती है, जान निकलती है, तो कितनी तकलीफ़ होती है? आपने फरमाया कि मौत की सख्ती का ये हाल है कि जैसे किसी कांटेदार शाख को पेट के अंदर मारा जाए, कांटेदार शाख को पेट के अंदर मारा जाए और फिर उसका हर कांटा किसी रग के साथ उलझ जाए और फिर ताकतवर इंसान उसको खींचे, तो फरमाया उसका अंग अंग तकलीफ से हिल जाता है। फरमाया ये मौत की सख्ती है और इससे भी कहीं ज्यादा। और सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी जब रूह मुबारक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश की गई तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे प्यारे कलीम मौत की सख्ती को कैसे पाया? सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ऐसे पाया जैसे किसी जिंदा मुर्ग को भूने और ना वो मरे और ना ही वो उड़ सके। आग के अंदर उसको जलाया जाए मुर्ग को, ना वो मर सके और ना वो उड़ सके। ऐसे मैंने तकलीफ को महसूस किया, मौत की सख्ती को ऐसे महसूस किया। वो पैगंबर है। और कीमिया सआदत के अंदर इसको इमाम गजाली ने इस बात को तारीफ फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक हदीस मुबारक है शरह सुदूर के अंदर, हुजूर ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक ताइफ एक कब्रिस्तान में आया और आपस में कहने लगे कि यार 2 रकात नमाज हम पढ़ें और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगे कि मौला करीम किसी मुर्दा को जिंदा फरमा दे और वो मुर्दा से हम मौत की खबर पूछें। उन्होंने ऐसा ही किया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। तो कब्र से एक सियाह रंग का शख्स जाहिर हुआ है कब्र से। उसने सवाल किया, कहते हैं कि उसके माथे पर सजदे का निशान था। जो सियाह रंग का शख्स कब्र से निकला, उसके माथे पर
सजदे का निशान था। और उस शख्स से पूछा कि उस शख्स ने सवाल किया कि बताओ मेरे साथ क्या सवाल है तुम्हारा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं 100 साल हो गया मरा था, 100 साल के बाद आज मैं अपनी कब्र से निकला हूं। फरमाया कि अभी तक मौत की तकलीफ मेरे जिस्म से नहीं गई। 100 साल गुजर गया है, मौत की तकलीफ मेरे जिस्म से अभी तक नहीं गई। यानी मौत की इतनी सख्ती होती। एक रिवायत में आता है किसी शख्स ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत और सवाल दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान मुबारक है कि मोमिन की जान ऐसे निकलती है जैसे खमीरे आटे से बाल निकाला जाता है। हुजूर ने फरमाया जी हाँ। फिर उस शख्स ने ये आयत मुबारक पढ़ी, ख्वाब के आलम में सवाल कर रहा है और आयत मुबारक ख्वाब के आलम में सुना रहा है, कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वत्तफ़त इस्साक बिस्साक। हुजूर कुरान की इस आयत से तो मालूम होता है कि निज़ा की शिद्दत निहायत सख्त होती। और आप फरमा रहे हैं कि मोमिन की जान ऐसे निकलती है जैसे खमीरे आटे से बाल निकाला जाता है। हुजूर ने फरमाया जी हाँ। तो अर्ज करते या रसूलल्लाह, फिर हदीस की मुताबिकत कुरान की आयत मुबारक ऐसा तो ना हुई, फिर हम आपके उस फरमान को मानेंगे या कुरान की इस आयत मुबारक को मानेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने फरमाया कि तुम सूरत यूसुफ पढ़ो, इसका जवाब तुम्हें मिल जाए। वो शख्स जब ये सवाल जवाब सुना हुजूर का तो जाग आई। जब बेदार हुआ तो सूरत यूसुफ को खोला, वुजू करके बैठ गया पढ़ने के लिए। सूरत यूसुफ पूरी पढ़ डाली, जवाब ना मिला। कभी इधर भागा, कभी इधर भागा कि मुझे हुजूर ने ज़ियारत करवाई ख्वाब के आलम और फरमाया मैंने ये सवाल किया तो हुजूर ने फरमाया कि तुम सूरत यूसुफ पढ़ो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। मैं तो बार बार सूरत यूसुफ पढ़ रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल रहा। जब इधर उधर भागता रहा, सवाल करता रहा, किसी एक बुजुर्ग आलिम दीन के पास पहुंचा जो सूफी था, दीन को समझने वाला था, जिसने दीन को समझा, दीन को पढ़ा अपनी आखिरत को संवारने के लिए, जिसने दुनिया हासिल करने के लिए दीन को पढ़ा है, उसको दीन इतना समझ भी नहीं आता। वो ऐसा बुजुर्ग था जिसने अपनी आखिरत संवारने के लिए दीन को पढ़ा था। उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि हुजूर ने जवाब सही इरशाद फरमाया, तुम सूरत यूसुफ पढ़ो, सूरत यूसुफ के अंदर तेरे सवाल का जवाब है। उसने कहा कि मैंने तो पढ़ी। वो बुजुर्ग आलिम दीन कहने लगा कि तुम फिर से मेरे सामने पढ़ो। वो सूरत यूसुफ खोल कर पढ़ने लगा। जब पहुंचा ना, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व कत्ताना अयदियहुन्ना व कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जब इस आयत मुबारक पे पहुंचा ना तो फिर उस बुजुर्ग आलिम दीन ने फरमाया कि अब तुम इसका तर्जमा करो। उसने तर्जमा किया कि मिस्री औरतों ने जुलेखा के घर में जब जमाल यूसुफी देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब जमाल देखा, बजाय फल के अपने हाथ काट बैठी, उनको महसूस तक भी ना हुआ। तो फिर वो शख्स अर्ज करने लगा कि हुजूर ये कैसे जवाब उसका बनता है? बुजुर्ग आलिम दीन ने फरमाया बिल्कुल ठीक है। तुम देखो, जब मुनाफिक और काफिर की रूह कब्ज होती है उसको तकलीफ इतनी होती है कि बर्दाश्त से बाहर है, और जब मोमिन की रूह कब्ज होने लगती है तकलीफ उतनी होती है जितनी हुजूर ने फरमाया है। रब की कुरान की आयत भी सही फरमा रही है, नबी का फरमान भी सही फरमा रहा है, तकलीफ उतनी होती है। लेकिन एक बात याद रखें, उन्होंने फल काटने की बजाय अपने हाथ काट डाले थे। हुस्न यूसुफ देखा था, दर्द को भूल गई, हाथ कटता उनको समझ ना आया। फरमाया कि जब मोमिन की रूह कब्ज होती है ना, मोमिन की रूह कब्ज होने का वक्त आ जाता है, उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा मुबारक सामने आ जाता है। मोमिन कह रहा होता है महबूब आपकी जुल्फ पे कुर्बान जाइए, आपकी आंखों पे कुर्बान जाइए, आपकी अदाओं पे कुर्बान जाइए। ये कुर्बान हो रहा होता है, फरिश्ते उधर से रूह कब्ज कर लेते हैं, इसको तकलीफ तक भी महसूस नहीं होती और दुनिया जहां से जनाब ये चला जाता है।